So, hello, fellow engineers, and today we are going to have this first lecture on semiconductors. So, without wasting much of any time, let us get started. And in this lecture, we are going to have a brief overview on what are semiconductors, and we will also solve some numericals based on topics such as diodes, forward current, and many such other topics. So, without wasting any further time, let's get started. First of all, what is basically a semiconductor? So, semiconductors are substances with specific electrical properties that allow them to be used as the foundation for computers and other electronic devices. Now, this sentence pretty much tells us how this thing is actually related to us, and even if you going to see into computers and any other electronic device, right from calculators to supercomputers, we are bound to find some or the other level of semiconductors, some microprocessors, chips, which drive these devices. So the fundamental of any smart thing or any digital thing is going to be a semiconductor based product. Now these have a conductivity that is less than conductors, so you'll have to actually keep that in mind, that the conductivity of semiconductors is actually less than conductors but greater than insulators. So if we say this is a conductor and this is an insulator, so this is where semiconductors are going to lie in terms of conductivity. Also, some examples for semiconductor materials are silicon and germanium. There are also many others, but we are mainly concerned about these two, as much of our chips are based on silicon and germanium based products. Well, now semiconductors, if we know what is a semiconductor, we should also talk about their types. So the first type is intrinsic semiconductor. Now, if we talk about an intrinsic semiconductor, it has no doping, which means it's pure semiconductor and it has nothing added into it. So that is how it works. And this specific term is not much of use into our electronics. Like actually used extrinsic semiconductors. Now, what is an extrinsic semiconductor, you say? So this is actually something which is mixed, or which is which are some impurities which are being added into pure semiconductors in order to alter their conductivity. Now, in extrinsic semiconductors, when we add some impurity, we call it as doping. So you can see this is called doping in semiconductors. Now, if there is a pure array of silicon atoms, we can see over here that this is a pure atom of silicon, and it has nothing, like there are no impurities right now, and it is in the purest form. But over here, if you see, this is how there is a phosphorus atom which is added into it. And if you see, phosphorus is actually being adjusted in this place, and this is called as an n type semiconductor. And whereas we if we add a boron atom into this, it is now being called as a p type semiconductor. Now, when we add certain impurities, it's called doping, and there are two types of doping: a intrinsic semiconductor, which becomes extrinsic after doping. Now, over here, I've written it very specifically that phosphorus is a pentavalent atom, which means there are 5 valence electrons in its outermost shell. And similarly, boron is a trivalent atom, which means it has 3 valence electrons in its outermost shell. Now, when we take these two specific elements as the impurities in order to dope with the pure atom, we get something called as n type semiconductor and p type semiconductor. Now, what these things mean is actually being given into the next part. So if you see here, pentavalent is nothing but phosphorus, and phosphorus has jada. See, why am I saying that it has jada electrons? So let's say if a certain atom like silicon, it has 4 electrons in its outermost orbit. So if we say something is more than 4, then we call it jada, and if something is less than that, then we can say that it's come. It's pretty simple, but and useful. It's a useful trick to remember these things. So if there are like 5 electrons in the outermost element, we say it is pentavalent, and it's actually 1 electron more than what this particular thing had in the first place. So if we remember this, that pentavalent is 5, and 5 is more than
4, so we can get that there is n type of semiconductor. Now let me explain why I'm focusing more on this thing. So let's just consider we have phosphorus. Now phosphorus has 5 electrons, and 5 is nothing but one more. So when we say one electron is in excess, then we can say that it's going to cause something as negativity. Electron is absolutely negative, so we can remember that if you have one electron in excess, you're going to create negativity, and hence you can also remember that it's going to create n-type semiconductor. So that is how you can remember this. Similarly, if you say trivalent, trivalent is boron or aluminum, and boron has only 3 electrons in its outermost orbit, so it's of course it's going to be lesser than the number that is 4. Sorry for that. And if it's 4, then we can say that it lacks one electron, and hence it has p type. It forms p type semiconductor. Now over here I can use this trick as well. I can write boron, and boron has one less electron, and hence it creates positivity, and this positivity will be remembered as p type. So you can remember that by remembering these simple techniques like one less and one more, positive and negativity. So it would be easier for you if you are learning this concept for the first time. Next, we are more concerned about p-n junction, which is joining these two type of semiconductors. And if we take a p-type semiconductor and a n-type semiconductor, and if we bring them together close enough that their atoms could be diffused, or their electrons or holes can be shared, then it's called as a p-n junction. Now आखिर है क्या भाई ये? So let us get into it and have a brief idea of what it is, so we can completely understand this concept. Now, basically, I have written this definition as region where two differently doped semiconductors are joined. भाई join होते हैं, but let's see how it works. And as we have just seen, P is for holes and N is for electrons. So P type has holes and N type has electrons. और अगर ये लर्न नहीं हो रहा है तो ऊपर की ट्रिक याद कर लो. दैट इज़ द ओनली सिंपल थिंग दैट आई पर्टिकुलरली यूज टू लर्न दीज थिंग्स बिकॉज आई डोंट रिमेंबर दैम. Whenever I need them, I just apply that trick and get to know about it. PN junction diode. Now, this is the main thing that we need to understand. But before that, let's see if this is a region called as P type, and this is like the another thing, and it's called as N type. So N is going to have electrons because N type is going to be doped with a pentavalent impurity, whereas P type is going to be doped with a trivalent impurity, so that there is one electron less. So this white thing is not nothing but a hole, and this yellow thing is an electron. When these are sufficiently brought together, like brought close together, we can say that these things are going to form a region where these electrons would diffuse to some place, and these holes would diffuse to some extent, and would form a region known as potential barrier. So this thing which I'm highlighting right now would be the potential barrier, and this is exactly the thing we are going to see in our next part. Coming to PN junction diode. Now, this is the main thing that we are concerned about, and it is the reason why we have dived deep into semiconductors and extrinsic and intrinsic semiconductors and doping and all those stuff, just in order to get a clearer idea and a view of what exactly is a PN junction diode and how it is formed and the principle of its working. So basically, if we have a mota moti view of this PN junction diode, we can get that it is just a valve. It's actually a one-way valve which actually allows current to flow only in one direction, but it has some of its like it you'll have to follow some of its rules in order to make current flow through it. Like भाई ये थोड़ा शहाना है तो इसको थोड़ा सा मतलब you'll have to pay something in order to allow this the current to flow through it. तो अगर समझो let's say ये एक टाइप का वॉल्व है
जिस वॉल्व को आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और जब आप इसको पैसे दोगे तभी उसमें से पैसे फ्लो हो पाएंगे. ओके, इट्स लाइक when you do some Google Pay transaction or you do something like a recharge, so there is some convenience fee which is being charged to you. तो ये जो डायोड है, it will also charge some convenience fee when some current is being passed through it. तो वोल्टेज अगर 5 वोल्ट्स इससे पास करोगे तुम, तो ये कुछ पार्ट उसका खा लेगा, जस्ट एज कन्वीनियंस फी. और एंड दैट इज कम समथिंग कॉल्ड एज, यस यू आर राइट, यू नो दैट. बोलो बोलो भाई बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं तो बताऊंगा ही आगे. So that is the brief concept of how a diode is going to work. It is a one-way valve, or it is actually going to charge you some fees, and that convenience fee is nothing but the drop that is being created by a diode. It is called as forward drop, or you can also call it as potential barrier, or you can also call it as knee voltage. Whatever it is, all are the same terms. So this is how we are going to understand what is a p-n junction diode. सबसे पहले टेक्निकली टॉकिंग, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस एंटायर स्टफ. सो ये जो डायोड है, this is going to be represented by one straight line and then a triangle like this, and then lines across it. So this particular part, ये जो खड़ी डंडी है, this is going to be the negative part, cathode, and this part over here is going to be the positive part, which is anode. नीचे लिख रखा है, फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मज़ा आ रहा है लिखने में इसलिए बस, नथिंग एल्स. So you can see over here that this cathode is represented by a big line, and the anode is in the base side of this triangle. तो flow of current will always be like from the positive to the negative side. तो अब मैंने इसको ऐसा याद रखा था that there is a force which is coming through this, बहुत सारी एनर्जी आ रही है इस साइड में like this like this like this, and it is being like ये ट्राइंगल शेप है, तो आई यूज टू रिमेंबर इट लाइक दिस की इट गेट्स कन्वर्ज्ड ऑन टू दिस पॉइंट, और फिर इस दीवार को तोड़ के आगे चला जाता है. बट अगर उल्टा आया तो इस साइड से ये इसको नहीं तोड़ सकता. सो दैट इज़ हाउ आई यूज टू रिमेंबर इट. देयर इज़ नथिंग लाइक यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इट इन द सेम वे. यू कैन ऑल्सो इवॉल्व योर ओन थिंग्स, और यू कैन सिंपली लर्न दिस की बड़ी डंडी कैथोड है और द अदर थिंग इज एनोड. That is how I used to remember it. Flow of current is towards this badi dandi. Always remember this badi dandi over here. So current will always flow in this direction when it is forward biased. Now, देखो, reverse current is like something which is forced into it, ज़बरदस्ती. So when you are going to have a forward voltage, यानी कि जैसा ही एनोड और कैथोड है, यहाँ पे पॉजिटिव दो, यहाँ पे नेगेटिव दो, तो इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड बायसिंग. और अगर इसको उल्टा कर दिया, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव नेगेटिव ओवर हियर एंड पॉजिटिव ओवर दिस साइड, देन इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज रिवर्स बायस. पॉजिटिव बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड में करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस वे, द डायरेक्शन इन विच इट इज़ इंटेंडेड टू फ्लो. तो इस डायरेक्शन में जाएगा, देन इट विल बी वेलकम्ड. हंस हंस के बोलेगा कि ठीक है भाई, होने दो फ्लो, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन यू आर गोइंग टू रिवर्स दिस, यू आर गोइंग टू हैव अ रिवर्स बायस, तब ये ज़बरदस्ती होगा एंड करंट अलाउ नहीं होगा. करंट वोंट फ्लो थ्रू दिस डायोड. देयर वुड बी सम लीकेज करंट विच वुड बी इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्प्स, बट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, मेनली तो नहीं होगा. बट अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते रहे, इस वोल्टेज को जो रिवर्स में आप लगा रहे हो, ज़बरदस्ती करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो एक टाइम आएगा जब ये डायोड ख़राब हो जाएगा और फिर उसके बाद करंट फ्लो हो जाएगा. और ये जब पॉइंट आएगा कि ये डायोड ख़त्म हो जाएगा पूरा इतना हाई वोल्टेज देने की वजह से, दैट वुड बी कॉल्ड एज द एवलांच इफेक्ट. नाउ आई माइट बी रॉन्ग इन द स्पेलिंग, बट दैट इज़ वॉट इट इज़. तो ये जो एवलांच इफेक्ट है, ये कब आएगा, जब आपका रिवर्स वोल्टेज, यानी कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है. नाउ व्हाट इज़ अ पीक इनवर्स वोल्टेज? पीक इनवर्स voltage. So this is something which is the maximum limit, the safe limit beyond which if you put the reverse voltage, अगर आप इसको रिवर्स बायस में इतना ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे कि ये टूट जाए या फिर ख़राब हो जाए, जल जाए, सो उसके पहले की लिमिट जहाँ तक वो उसको हैंडल कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पीक इनवर्स वोल्टेज. If you are going to exceed that limit, then this entire thing is going to break down. So this is called as the peak inverse voltage. अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हो गई, थोड़ा सा अब देखते हैं what is actually happening in the diode. Now if you're going to see what
the PN junction looks when it is formed. So this is called as barrier formation. जब मैंने बोला कि it charges a convenience fee that it's going to drop some voltage, तो ये क्यों करता है? Let us see the reason behind why it is going to drop certain voltage. Now you might know that for silicon it is 0.7 and germanium it's 0.3, but why is that voltage? क्यों होता है? Let us see into it. Now what actually happens is when we form this PN junction, तो होता है यहाँ की this region, entire region, when you are going to connect it, these n type region electrons, ये electrons जो हैं ये यहाँ से थोड़ा बहुत diffuse हो जाते हैं यहाँ पे. So the reason behind formation of a potential barrier or a depletion region is that ये जो P वाले हैं ना, P मतलब कौन सा region आया, which is having holes. तो ये क्या करते हैं, ये होल्स चले जाते हैं N साइड में, और ये N वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाते हैं P साइड में, क्योंकि डिफ्यूजन तो होगा यार. देखो वेर देर इज समथिंग हायर, समझो यार, लेट अस टेक दिस एज एन एग्जांपल. ओके, यहाँ पे बहुत सारा पैसा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है. तो ये जो गरीब आदमी, ये इंसान, ये अमीर के पास जाएगा, ये अमीर आदमी जो है ये गरीब के पास जाएगा. ऐसा होता तो नहीं है बट जाएगा. लेट अस अज्यूम दैट. So that is the simple way to understand that how this thing is going to work, like diffusion of electrons and holes. तो n type से जो electrons है, these will try to go towards holes because ये negative है और ये positive है. They want to cancel out each other so that they can attain stability. तो ये ट्राई करेंगे अपने अंदर से इस साइड से इधर जाने के लिए. अभी देखो ये पाथ तो फॉलो नहीं करेंगे, ये सीधा इधर से जाएंगे ना. सो व्हाट विल हैपन इज P types, like P में कौन से होते हैं, holes. So holes will try to go towards the N side and N, that is electrons, will try to go towards P side. Now what will happen is जब ये P वाले जब N की तरफ जाएंगे, so what they will these positive things will go towards N side. तो ये जो यहाँ से गए थे वहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे because these people were positive. पॉजिटिव अगर आदमी चला गया हमारे ग्रुप से तो हमारे ग्रुप में क्या बचता है, नेगेटिविटी. सो इट्स वेरी सिंपल लाइक दैट. इफ होल्स आर गोइंग टू लीव द P रीजन एंड गो टूवर्ड्स N साइड, तो P रीजन में क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज. अगर N टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए P की तरफ तो बचेगा क्या फिर, पॉजिटिव चार्ज. सो in this particular diagram you can understand how this thing is being getting created. तो यहाँ पे this was actually the neutral P region and the neutral N region. Now what happens is due to the diffusion of these electrons, अपनी जगह से ये जो चले गए एक रीजन बन जाता है, दिस रीजन विच इज़ कॉल्ड एज द डिप्लीशन रीजन. ये जो D से यहाँ पे दिखाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिप्लीशन रीजन. द रीजन वेयर देर आर many electrons and holes accumulated over here. So this region is called as depletion region. अब इस depletion region की वजह से होता क्या है, that this region stops any movement of holes or electrons from either side. वो बोलेंगे भाई ये इतना हो गया, अब इसके बाद नहीं, शांत बैठो. So there will be no disturbance, nothing in the entire region. अब ये पूरा शांत हो जाएगा. Now what happens is कि ये region क्या कर रहा है, ये region, this entire region is going to stop the flow of electrons and holes from the each other side, जिसके वजह से करंट का फ्लो तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन और होल्स का फ्लो भी नहीं हो रहा है तो करंट भी फ्लो होने से रहा. Now what happens is अगर इस रीजन को ब्रेक करना है, इस रीजन को अगर तोड़ना है, इसको बोलना है कि भाई बहुत हो गया तेरा नखरा, अब हमको करंट फ्लो करने दें, तो यू विल हैव टू अप्लाई अ सर्टन वोल्टेज और हियर विच इज़ गिवन बाई ई, जिससे कि ये जो यहाँ पे मेस क्रिएट हुआ है ये सब शांत हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट. नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अगर हम इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेते तो. सो व्हाट विल बी देयर कि इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज को देने से ये ख़त्म हो जाता है एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, दैट वुड बी कॉल्ड एज आवर नी वोल्टेज. knee voltage, or you can also call it as potential barrier. Now these are similarly interlinked terms. Potential barrier क्या होता है, जो barrier है which is stopping the flow of current, उतना potential जो देने के बाद ये barrier ख़त्म हो जाएगा, that would be called as potential barrier. और उतना voltage जो देने के बाद this electron, this diode would start conducting. देखो, this is the kind of graph we are going to get, and at this point
this is I and this is V. This point we called it as knee voltage, right? तो हम इसको नी वोल्टेज बोलते इसलिए है बिकॉज एट दिस वोल्टेज दिस बैरियर ये पूरा ख़त्म हो जाता है. एंड ख़त्म कैसे होता है? सो व्हाट हैपन्स इज जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे ये जो रीजन है पहले इतना हो जाएगा, उसके बाद उसकी विड्थ और कम होती जाएगी एंड देयर वुड बी अ पॉइंट वेयर दिस रीजन वुड बी दिस थिन एंड देन इट वॉन्ट एग्जिस्ट. तो जितना हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, if the new voltage is consider 0.7 volts, हम अगर जैसे जैसे 0.1 देते जाएंगे 0.2 0.4, सो ये जैसे जैसे बढ़ेगा द width of this depletion region will start decreasing. This is all going in forward bias. ओके सो जब तक फॉरवर्ड बायस में आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे द width of this depletion region would start decreasing and at one point it would be like it won't exist and at that point this would become a conductor. So ये था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का एक्सप्लेनेशन. क्या है फ्लो ऑफ करंट, क्यों होता है डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर क्यों क्रिएट होता है, और ये जो कन्वीनियंस चार्जेस लेता है हमारे हमसे डायोड, द वोल्टेज दैट इट्स गोइंग टू ड्रॉप, it's nothing but the potential barrier, the new voltage which is created due to this depletion region. ये तीनों interlinked terms हैं. If you understand this concept it would make you very clear of why these terms are interlinked. तो भाई क्या क्या पता चल गया अभी तक? मुझे लगता है 20-21 मिनट का वीडियो हो गया है. क्या क्या पता चला? So we have got to know what is doping in semiconductors, addition of certain impurities so that the electrons and the holes are being created so that the semiconductors can conduct electricity. उसके बाद हमने देखा what is a p and n type junction, p क्यों बनता है, n type क्यों बनता है, p क्यों बनता है, and all those things कि उसमें क्या क्या ऐड करने से क्या क्या होता है. तो उसके बाद वी सॉ पी एन जंक्शन डायोड की इन दोनों को दी पी एन एन इनको ज्वाइन करने के बाद जो बना दैट जंक्शन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट पी एन जंक्शन, एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे लाइक पीक इनवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस. उसके बाद वी ऑल्सो सॉ दिस द डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर एंड एवरीथिंग अबाउट इट. अब आगे तो इस डायग्राम को देखकर दिस थिंग राइट ओवर हियर, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, क्या लगता है? यू कैड राइट योर ओपिनियंस, यू कैड स्पीक इट आउट. कोई नहीं, आजू बाजू कोई कोई नहीं सोचने वाला ये बच्चा क्यों अकेले में बड़बड़ा रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट. सो व्हाट विल हैपन हियर इज़ वेरी सिंपल. दिस थिंग वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट फ्लोइंग द करंट राइट हियर, है ना? बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज इफ़ यू ऑब्जर्व वेरी क्लियरली the circuit is actually in reverse bias. Now you would say ऐसा क्यों किया, मतलब what is your point in saying that it's a reverse bias circuit? So if you see and observe clearly, this is plus and minus and this plus is situated towards the cathode of the diode. तो इस वजह से the current won't flow in the opposite direction or therefore the reading of the ammeter would be zero, क्योंकि दिस एमीटर इज़ नॉट गोइंग टू मेजर एनीथिंग इन माइक्रो एम्प्स, तो इसकी वजह से इसको रीडिंग सीधा ज़ीरो आएगी. नाउ द थिंग व्हाई आई एम सेइंग माइक्रो एम्प्स इज़ बिकॉज देयर इज़ सम लीकेज करंट इवन इन द रिवर्स बायस विच विल फ्लो थ्रू द डायोड्स, बट वो इतना छोटा होता है कि दैट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल. So unless and until your ammeter is capable of measuring current in microamperes, it would always show zero. तो ये हो गई थोड़ी डीप वाली बातें, बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. यहाँ पे मैंने DC 10 वोल्ट्स दिया है एंड इट्स एक्चुअली कनेक्टेड इनटू रिवर्स बायस, सो देयर वुड बी नो करंट फ्लो एंड हेंस इट्स ऑलवेज कंपल्सरी एंड ऑलवेज द फर्स्ट थिंग यू शुड लुक इनटू अ सर्किट इज़ द बायसिंग ऑफ द डायोड, कि ये रिवर्स बायस है या फिर इट्स फॉरवर्ड बायस इन वॉट एवर इट इज़. बायसिंग यहाँ पे हम फिर से एक बार देख लेते हैं नाइसली so that you won't be confused anymore. So this is plus minus, and if you see this lumby dundee is always plus, whereas the lumby dundee in the diode is always negative. So what happens is this plus should go to plus and minus should go to minus. The basic thing इससे simple कुछ नहीं होता भाई. So this is forward biasing of a conductor, and now when you are actually biasing this diode in the forward bias,
it acts like a conductor. Now what a conductor does, it conducts electricity with a small resistance. तो जब भी करंट फ्लो होगा इस डायोड से इन द फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पे it will act as a conductor, and the resistance that it would offer when the current is flowing through it in a forward bias would be this. This is something called as forward resistance of a diode. We will have that forward, like आगे देखते हैं उसको. नेक्स्ट यहाँ पे है रिवर्स बायस. तो जब भी योर डायोड दिस थिंग इज गोइंग टू बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, so it is going to act as an insulator. Insulator क्या करता है, it has a very high resistance and ideally it's infinite. तो जब भी resistance infinite होगा, the current won't be flowing through it. तो this is how it's going to connect it. So this positive is connected to negative and negative is connected to positive. So diode बोलेगा भाई नहीं चलने वाला अपन. अब इसका रीज़न भी ये है that the depletion region that we saw right now, ये अगर पहले इतना था, तो जब हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं ना इस डायोड को, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ना ये बढ़ता जाता है. इट्स विड्थ इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, इसकी विड्थ कम होती जाती थी, बट इन रिवर्स बायस द विड्थ वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से इसका जो फ्लो है करंट का दैट वुड बी लाइक और इम्पॉसिबल होते जाएगा. सो दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल थिंग यू शुड नो, like why reverse bias does not conduct electricity, why it acts as an insulator. That is the reason. The depletion region, the width of it starts increasing, which is why in reverse bias your diode cannot conduct electricity. तो that is it. डायोड क्या होता है, वॉल्व जो कि वन वे वॉल्व होता है, और बात ख़त्म. सो दैट वाज इट. डायोड की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है. थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक डीपर, सम बेटर टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज जो कि डायोड से रिलेटेड है. सो थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं. 11th-12th में हमने पढ़ा है AC, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, राइट. सो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो इस वीडियो को, इफ़ यू आर सीरियसली वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस लेंथ, क्योंकि देखो यार, लाइक 50% ऑफ द जनता, लाइक इवन मोर देन दैट, हैज़ लेफ्ट दिस वीडियो वे बिफोर because they aren't serious, they don't want to learn this topic. So if you are actually over here, congratulations first of all, because you're going to learn this topic in very detail. And now let us get back to the topic. AC is alternating current and this is the graph. ये हमने पढ़ा है स्कूल में, राइट. तो ये जो ग्राफ है, वी हैव लाइक इंक्रीजिंग, दिस इज अ साइन वेव ग्राफ. तो फर्स्टली इंक्रीज होता है and always gets decreasing. So this is actually one complete cycle. This entire thing is one complete cycle, and in this one cycle what happens, the voltage will achieve its positive maxima and then a negative maxima. So what happens over here is, if you are having an AC voltage of 20, now this 20 volts is going to be plus 20 over here and then minus 20 over here. So this is how AC current works actually. So what happens is, if you are going to say that the frequency of my AC signal is like 50 hertz and it's going to be 20 volts. So what will happen is, you'll have a maximum voltage of 20 both in the positive half and the negative half, and the frequency indicates how many times this graph is going to oscillate about its mean position. So this is the thing that you must know about AC, which is a prerequisite in order to understand the further terminologies. Now V naught is nothing but peak voltage. तो इस ग्राफ के ऊपर जो peak आएगा, this is called V naught. Then we also have VRMS, which we have learned in 12th standard. So VRMS is nothing but the root mean squared. This is some terminology that we actually have used many times. So root mean squared जो होता है value है, that is actually V naught by root 2, which is obtained experimentally or theoretically, I don't know, but this is V naught by root 2. तो अगर समझो your voltage is like 100, root 2 is your V naught, तो आपका VRMS would always be equal to 100, because this is how you're going to obtain your VRMS voltage. And जब हम कहते हैं कि हमारे घर पे 220 या फिर 240 volts आता है, so that is the RMS value of the power that we are receiving. So
जब भी हम कहते हैं कि हमारे घर पे 220 वोल्ट्स आता है या फिर 240 वोल्ट्स आता है, सो दैट इज़ नॉट वी नॉट, दैट इज़ वी आर एम एस. वी आर एम एस इज़ the value that we used in order to calculate the things like the RMS current, the other factors like which we require to calculate the power and all those things. नेक्स्ट इसी की तरह पे हमारे यहाँ पे पीक करंट भी होगा और RMS करंट भी होगा. एंड दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज स्टडी योर चैप्टर्स. अगर तुम्हारा सिलेबस है तो यू विल हैव टू स्टडी दैट. अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है देन गो बैक into your 12th standard book and study AC, because this is going to require a lot of basics, and these basics are going to help you a lot in like further chapters. क्योंकि भाई यू आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर तुमको AC नहीं पता तो छोड़ दो फिर. सो दैट इज़ हाउ. अब ज़रा वापस आते हैं डायोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे. सो ये जो फ्लैशबैक है इसको अब यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं. फ्लैशबैक, वो कलर क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक एंड वाइट मोड बंद करते हैं और वापस आते हैं कलर पे. सो अब ज़रा वापस आते हैं एंड लेट अस सी व्हाट आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायोड्स. सो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड रिवर्स रेजिस्टेंस, जैसे कि नाम बताते हैं, कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है. अ डायोड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस टाइप पे, उसने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया करंट को फ्लो होने में, दैट इज़ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस. और जब वो रिवर्स बायस्ड होता है तब वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट को, दैट वुड बी रिवर्स रेजिस्टेंस. तो इट्स नथिंग लाइक रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है, नाम पे से पता चल जा रहा है. उसके बाद लेट अस सी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फॉर AC करंट. नाउ दिस इज टर्मिनलाइज्ड एज दिस इज स्मॉल r एंड स्मॉल f. तो इसको याद रखो, अगर कहीं पे तुमको दिख गया न्यूमेरिकल्स में या फिर किसी क्वेश्चन में, you will have to understand this RF is nothing but forward resistance offered for AC current. तो इसको याद रखो. The resistance offered by a PN junction diode in forward bias across AC current, that is alternating current. Now ये जो ग्राफ है, this graph tells you like clearly that how it is going to be calculated. Change in forward voltage upon change in forward current. देखो यार, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, जो कि हमारा ओम साहेब का लॉ है. तो ओम साहेब हमको क्या बोल के गए थे? ओम साहेब बोले थे कि वेन एवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, इफ़ यू वांट रेजिस्टेंस यू आर गोइंग टू पुट V अपॉन I. तो अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे, तो ये देखो वोल्टेज है ऊपर, करंट नीचे है. सो व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस. बस इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका फैंसी हो गया, इसलिए हमको डर लगने लगा उससे. तो डरना नहीं है बिल्कुल भी. चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये जो करते थे हम पहले, बस वही करना है, नथिंग एल्स. इफ़ यू टेक दिस पॉइंट, ये जो F से रिलेटेड करंट है और C से रिलेटेड वोल्टेज है, दैट इज़ एग्जैक्टली द थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ओवर हियर. सो OC, दैट इज़ द वोल्टेज OC, यहाँ से लेके यहाँ तक OC माइनस OA, यानी कि हमारा जो एरिया है, दिस इज़ द एरिया वी आर कवरिंग अबाउट, अपॉन OF माइनस OD, OF माइनस OD. तो दिस एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट. तो व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग इज वी आर गेटिंग द स्लोप. सो बट थोड़ा सा उल्टा काम है, इट्स नॉट स्लोप एक्चुअली, इट्स थोड़ा सा डिफरेंट. सो व्हाट वी आर डूइंग इज AC अपॉन DF, and this actually going to come out as RF. So AC forward resistance, अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है and that graph, if you want to calculate the value of forward resistance, you can simply apply this approach and get your values of RF. Generally the forward resistance of a diode for AC current ranges from 1 ohm to 25 ohms. तो इसके बाहर नहीं जाता है, and this is the टर्मिनल रेंज. जनरली इस रेंज के बीच में होता है, लाइक फ्रॉम 1 ohm to 25 ohm. दिस इज ऑल अबाउट AC. अब जब यही फॉरवर्ड रेजिस्टेंस DC के लिए होता है, तो उसका जो R है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है. इट गेट्स कैपिटल, नॉट थोड़ा बट कैपिटल R. सो व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस नोटेशन, यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट DC. अब इस ग्राफ को देखो, सिंपली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेटेड. RF इज नथिंग बट
A minus OB. सो दैट इज़ सिंपल एज दैट. ये कैलकुलेशंस हमने बचपन में किए हैं. स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, तो हमको बस वही करना है, बट इट्स लिटिल बिट डिफरेंट. नेक्स्ट, रिवर्स रेजिस्टेंस. Reverse resistance offered by a diode in reverse bias. Okay, the resistance offered by a diode in reverse bias is nothing but reverse resistance. उसी के जैसा है, बहुत ही घटिया सा डेफिनेशन है, जैसा नाम वैसा डेफिनेशन. आइडियली रिवर्स रेजिस्टेंस इज इन्फिनाइट. अब ये जो स्टेटमेंट है, वाई डू वी से दैट आइडियल डायोड एंड अ नॉन आइडियल डायोड. लाइक आइडियल डायोड यानी मतलब वो होता है ना यार, लाइक द डायोड विच हैज़ ऑल दी प्रॉपर्टीज़, जिसमें कोई भी खोट नहीं है, इट इज़ परफेक्ट. ऐसा कोई डायोड एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वी आर लाइक हैविंग दैट कंसेप्ट ऑफ आइडियल डायोड. यार ये डायोड अगर आइडियल है तो इट इज़ गोइंग टू हैव एन इन्फिनाइट रेजिस्टेंस. कब? रिवर्स बायस में. सो व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ डायोड कनेक्टेड, एन आइडियल डायोड, लेट्स टॉक अबाउट आइडियल डायोड. अगर आइडियल डायोड को आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो, तो इसका जो आर एफ होता है, सॉरी दिस इज़ नॉट दिस, आर एफ या फिर आर एफ फॉरवर्ड में, दिस इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. और जब आप इसको रिवर्स में चलाओगे तो रिवर्स में इट इज़ गोइंग टू बी इन्फिनाइट. रिवर्स में कंडक्ट करना नहीं चाहिए और फॉरवर्ड में देयर शुड बी नो रेजिस्टेंस. सो दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. और जो भी चीज़ इसको फॉलो करेगी, विल कॉल दैट इज़ एन आइडियल थिंग. So that is why you can say that a reverse resistance for an ideal diode is infinite. Okay, but for non-ideal diodes, like जो असली में exist करते हैं, that is not infinite, but it's very 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 high. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, forward is to reverse का जो ratio है, that is 1:40,000, and for silicon it's way bigger, it's 10 lakh. तो 1:10 lakh ohms का होता है. ओके, रेजिस्टेंस किस में गिना जाता है भाई? ओम्स में ना. नेक्स्ट, this is some important concept, approximate equivalent circuit. Now VF, what is VF, what is V naught, what is IR, IF, RF? ये जो चीज़ें हैं, these are simple terminologies that we have discussed just above. तो we'll actually get into these terminologies very quickly, और 5 से 10 मिनट में we'll cover this entire things, and then we'll head into a numerical. So starting with what is VF. Now VF is the voltage that you apply across a diode in a forward bias. So V is the voltage, F is the forward bias. बस इतना याद रखो, बात खत्म. Then what is V naught? Now V naught is actually the voltage that is dropped by a diode. Voltage dropped by a diode is also called as the potential barrier or the knee voltage, और knee voltage. तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस a diode in forward bias, we will be denoting that by V naught. Then what is IR? This is the current that is flowing through the, wait, what is IR? IR कुछ नहीं होता भाई, IF होता है. Okay, so the current that is flowing through a diode in forward bias is known as IF. And what is RF? We already know that. This is the resistance offered by a diode in forward bias. So with that being said, जब भी हम एक डायोड को किसी सर्किट में यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ डायोड, और इसको हम किसी सर्किट में यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक बैटरी यूज़ है, देन देयर इज़ अ लोड रेजिस्टर, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दैट एंटायर दिस वोल्टेज, इफ इट्स से 20 वोल्ट्स, तो ये पूरा 20 का 20 वोल्ट्स इस डायोड में से पास होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा. व्हाट हैपन्स इज, if this is the VF, that is the voltage across the diode, which is 20 in this case, तो क्या होगा, this V naught is the voltage. Let's assume this diode is a silicon diode जिसका V naught होता है 0.7 volts. तो ये जो वोल्टेज है, this voltage which we are applying across this diode, ये क्या करेगा, it will be dropped by this. सबसे पहले तो 0.7 कम होगा उसमें से, उसके बाद this IF into RF. Now if we go back to Ohm's law, V equals to IR, तो हम ये देख सकते हैं जब भी करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट वोल्टेज. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनारियो है, हम करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है
वी आर बेसिकली एडिंग टू वोल्टेजेस, दो चीज़ों को ऐड करके हम उसको बता रहे हैं कि तीसरा जो है उसके इक्वल है। तो ये जो है आई एफ इंटू आर एफ, दिस इज एक्चुअली द करंट एंड द वोल्ट द रेजिस्टेंस, इन दोनों का जो गुणाकार हो रहा है सॉरी फॉर दैट, उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसके वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो रहा है अक्रॉस दिस डायोड इज गोइंग टू बी लाइक सम सर्टन वोल्टेज, लाइक समझो 2 वोल्ट्स इसने ड्रॉप किया, क्योंकि इस डायोड का भी एक रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस को तोड़ के जब वो करंट उसमें से फ्लो होगा, उस रेजिस्टेंस को सहते हुए जब वो करंट उसमें से फ्लो होगा, देन दैट इज गोइंग टू सर्टनली ड्रॉप सम वोल्टेज, और उस वोल्टेज को भी हम इस 20 में से माइनस करेंगे। सो जब हम 20 को कहेंगे कि दैट 20 वोल्ट्स इज अक्रॉस दिस डायोड इन दिस सर्किट, तो उस 20 में से 0.7 भी है, उसके बाद समझो हमने 2 पकड़ा था तो 2 भी है, तो ये कौन सा है, दिस इज आई एफ इंटू आर एफ, और ये क्या है, दिस इज वी नॉट, दैट इज दी वोल्टेज दिस दैट इज ड्रॉप्ड बाय द डायोड। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, और इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बने इसलिए हम इसको सिंपली एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये डायोड है, इस डायोड में से अगर करंट फ्लो हो रहा है और उसके अक्रॉस एक वी एफ का वोल्टेज पोटेंशियल दिया गया है, तो ये जो डायोड है, दिस डायोड इज़ गोइंग टू ओवरकम टू थिंग्स, यानी कि दिस वोल्टेज इज़ गोइंग टू ओवरकम टू थिंग्स, जो कि डायोड का एक तो पोटेंशियल बैरियर है, यानी कि एक तो पहले इसको पार कर, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट्स था, हमने अभी जो एग्जांपल में देखा। उसके बाद जो इंटरनल दिस ड्रॉप विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू दी रेजिस्टेंस, हमने इसको 2 वोल्ट्स लिया था, जो कि कम ज़्यादा हो सकता है, नो मैटर, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस एंड द करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब ये जो आई एफ है, ये आई एफ इज़ नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन दी रेजिस्टर, नॉट ओनली ऑन द डायोड, बिकॉज जो हमने सर्किट अभी लिया था, जिस सर्किट में हमने इस डायोड को ऐसे बिठाया था लाइक दिस, तो ये जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट आएगा, दिस रेजिस्टर इज़ दी लोड। सो इस आर एल पे भी डिपेंड करेगा कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड वुड बी डिसाइडेड। सो अगर समझो दैट रेजिस्टर, वो जो रेजिस्टर था वो समझो 10 ओम्स का था, तो क्या होगा, ये करंट आई एफ की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आई एफ है 5 एम्प्स, और उसके बाद अगर मैंने इस लोड रेजिस्टर की वैल्यू को कम कर दिया, 5 ओम्स रख दिया, तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी 10 एम्प्स। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरे की वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा, विच इज़ वाई द इंटरनल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड विल ऑल्सो इंक्रीज, फिर वो 2 वोल्ट्स नहीं रहेगा, 5 या 6 वोल्ट्स हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा इन द एंटायर सर्किट, द वोल्टेज विच वुड बी ड्रॉप्ड बाय द डायोड विड ऑल्सो इंक्रीज। तो समझा, ठीक नहीं समझा, डोंट वरी, इट्स समथिंग which you will be understanding only by practicing theory, by doing practicals, by listening to lectures, by solving numericals। तो ये तो बहुत चीज़ें फंडामेंटल है, दैट वी ऑलरेडी नो दैट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का वी नॉट कितना होता है, दी पोटेंशियल बैरियर और दी नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड्स, वी ऑलरेडी नो दैट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये याद रखो, बिकॉज इन न्यूमेरिकल्स यू विल बी सिंपली गिवन दैट सिलिकॉन का डायोड है और जर्मेनियम का डायोड है, यू विल हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज और एल्स कैलकुलेशन वुड गेट रॉन्ग। The approximate equivalent circuit of a crystal diode is a switch in a series with a battery V naught and internal resistance RF. So what actually they are trying to say is कि एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V नॉट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RF है, और उसको हम उस डायोड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली सर्किट में अगर समझो 1 किलो ओम का रेजिस्टर है और हमारी आर एफ की वैल्यू है लाइक 0.1 ओम, तो इसके सामने ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ना, तो इसके लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। सो एज्यूमिंग दैट वी अपॉन आई इज़ लीनियर, तो दिस इज़ एन अजम्पशन विच इज़ गिवन लाइक इफ़ दिस वी आई, इफ़ दिस इज़ लीनियर, तो हम इस आर एफ को इग्नोर कर सकते हैं, दैट्स इट।
नेक्स्ट लेट्स कम इन टू आइडियल डायोड. अब देखो यार, व्हाट इज एन आइडियल डायोड? सो व्हाट हैपन्स इज, जब हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था, a perfect conductor when forward biased and a perfect insulator when reverse biased. RF is 0 and V naught is also 0. जब भी कभी आप सोचोगे कि दिस इज एन आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड क्या करेगा? फॉरवर्ड बायस में कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा क्या? नहीं. इट वुड से भाई फॉरवर्ड बायस है, जितना करंट जाना है चले जा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वही अगर आपका जो डायोड है दैट इज़ इन फॉरवर्ड बायस, वो क्या बोलेगा? भाई पोटेंशियल बैरियर, भाई कन्वीनियंस फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जा, सारा पैसा लेके चले जा. सो कन्वीनियंस फ़ी भी ज़ीरो है, उसके बाद रेजिस्टेंस भी ज़ीरो है. सो दैट इज़ एन आइडियल डायोड एंड दिस केस इज़ इन ओनली फॉरवर्ड बायस. ओके. रिवर्स बायस में क्या होगा? ये जो वी नॉट है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये तो वैल्यू सीधा इन्फिनाइट हो जाएगी. तो इन रिवर्स बायस these things get completely changed. Forward bias के लिए क्या होगा? In an ideal diode, the forward resistance is zero and V naught is always zero, which is why we call it as an ideal diode. Even though an ideal diode doesn't exist, all diode circuits are analyzed on this basis. तो जब भी हम किसी diode circuit को analyze करते हैं, and if it is given in the question that you'll have to consider the diode as an ideal diode, तो फिर हम उसको ये सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करके ही सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल. डरो मत, दिस इज़ वेरी इजी एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस न्यूमेरिकल. इसकी दो मेथड्स है सॉल्व करने की एंड आई विल टेल यू बोथ दीज मेथड्स. आप डिसाइड करो आपको कौन सा ईजी लगता है एंड बोथ आर ईजी, बट विच वन सीम्स मोर प्रैक्टिकल टू यू, you will decide it. Okay. AC peak value of 20 volts is connected in series with a silicon diode and a load resistance of 500 ohms. If the forward resistance of diode is 10 ohms, find peak current through diode and peak output voltage. Also calculate these values considering the diode as ideal. देखो यार, पहले उन्होंने बताया है कि ये जो पहले केस है लाइक यहाँ तक, ओके, इसके पहले हमको पकड़ना है कि जो डायोड है दैट इज़ नॉन आइडियल और उसकी कुछ वैल्यूज़ है, जैसे कि उसका RF10 है, उसके बाद उसका वी नॉट तो नहीं दिया. ओके. सिलिकॉन है तो यहाँ पे सिलिकॉन देते ही चमकना चाहिए कि इसका वी नॉट कितना है, 0.7 वोल्ट्स. तो ये चीज़ें ध्यान में रखो. और इस पार्ट में बताया है कि ये सब करने के बाद, ये ऊपर वाला करने के बाद, नीचे फिर भी सॉल्व करो कि आइडियल डायोड पकड़ने के बाद कितने आएंगी वैल्यूज़. ओके. So the given is the peak input voltage is 20. Okay. तो हाईएस्ट जो मैक्सिमम अपने को वोल्टेज दिया गया है दैट इज 20. फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज 10 ohms. लोड रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 500 ohms. उसके बाद वी हैव पोटेंशियल बैरियर ऑफ द डायोड दैट इज 0.7 volts फॉर सिलिकॉन. और ये हमको खुद के दिमाग से निकाल के लाना है कि यार यहाँ पे दिया गया सिलिकॉन तो उसका 0.7 volts होगा. ओके. नाउ इस लाइन को पढ़ो और सोचो थोड़ा बहुत, क्योंकि दिस इज़ एन AC थिंग. लाइक इन्होंने दिया है कि यहाँ पे AC है तो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो होगा. ओके. पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि क्या? वो जो ग्राफ था उसमें बस यहाँ पे ये जो साइकिल है ये पूरी साइकिल होगी, बट क्योंकि हमारे इसमें एक डायोड लगा हुआ है, दैट डायोड विल अलाउ करंट टू फ्लो ओनली इन दिस डायरेक्शन. ये जब तक है तो तब तक ही करंट फ्लो होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये नहीं रहेगा. तो इसके लिए इस पार्ट में जो हाईएस्ट है दैट इज 20. गॉट दैट? सो द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते जाओ, जिससे यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ what is being asked in this question. So once you get to know the equivalent circuit, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है 20 volts 500 ohms. दिस इज RL द लोड रेजिस्टेंस. उसके बाद दिस इज RF. उसके बाद दिस इज द V नॉट एंड दिस इज द इनपुट दैट इज बीइंग गिवन दैट इज 20 volts. करंट का डायरेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है. नेक्स्ट, दिस इज मेथड 1 ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. पीक करंट तब मिलेगा जब पीक वोल्टेज होगा. ठीक है. ये इक्वेशन देखो यार, दिस इज वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 7th और 8th स्टैंडर्ड. V इक्वल्स टू IR. तो जब भी I की वैल्यू सबसे ज़्यादा चाहिए तो V की वैल्यू भी हाई चाहिए, कीपिंग ऑफ कोर्स कीपिंग R कांस्टेंट.
तो पीक वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया गया है, 20 वोल्ट्स। उसके बाद वी इन यानी कि इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है, वी एफ, दैट इज पीक वोल्टेज, वी इन, वी एफ, ऑल ऑफ दीज सेम थिंग्स। तो द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज 20 वोल्ट्स। ओके, दे दिया गया है हमको। उसके बाद ये जो वी एफ है, दिस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस आई एफ इंटू आई आर, सॉरी आर एफ प्लस आर एल। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, दिस एंटायर थिंग, ये तुमको याद करनी पड़ेगी। ये तुमको हर क्वेश्चन में, हर उस क्वेश्चन में जहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज गिवन एंड द पोटेंशियल बैरियर और द नी वोल्टेज ऑफ द डायोड इज गिवन, उसके बाद यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट आर दी वैल्यूज़ गिवन। लाइक वी नॉट की वैल्यू हमको पता है 0.7 है। उसके बाद ये आई एफ हमको निकालना है, वी एफ दिया गया है। उसके बाद ये आर एफ हमको पता है, दिस इज 10 ohms एंड दिस आर एल वी नो दैट इज 500 ohms. So putting all these values in the equation and solving for IF को एक साइड ले लिया, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे डाल दिया, and what we get over here is 37.8 milliamps. अब यहाँ पे भी when we are going to calculate IF, यहाँ पे देखो अगर मैं इस चीज़ को ले लूँगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में IF को, so what will remain is VF minus V naught, जो कि यहाँ पे हो रहा है VF minus V naught अपॉन 510 मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट आर एफ प्लस आर एल। वैल्यू कितनी आ गई, 37.8 मिली एम्प्स। तो ये जो करंट है, दिस इज करंट इन द फॉरवर्ड बायस ऑफ द डायोड एंड दिस करंट इज अक्रॉस द सर्किट, यानी कि पूरे सर्किट में इतना ही करंट फ्लो हो रहा है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर एंड थ्रू दिस एंटायर डायोड, यानी कि जिसको हमने एक बैटरी और रेजिस्टर में रिजॉल्व किया है, दिस इज़ नथिंग बट अ डायोड। ये जो है यहाँ पे एक डायोड है और उस डायोड को हमने तोड़ा है एक 0.7 वोल्ट्स की बैटरी और उसके बाद एक इसमें क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टर में। वी हैव एक्चुअली डिवाइडेड दैट सो दैट वी कैन गेट बेटर क्लैरिटी ओवर दैट। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं पीक आउटपुट वोल्टेज में। पीक आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा, आई एफ इंटू आई आर। अब देखो कभी भी जो आउटपुट वोल्टेज होता है, दिस वोल्टेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अक्रॉस द लोड। अब लोड क्या पे है, दिस इज लोड। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमको चाहिए, वी नो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर इज 37.8 मिली एम्प्स। नाउ आई नो दैट द करंट इज 37.8 मिली एम्प्स। अब मुझे निकालना है इस पॉइंट का वोल्टेज, तो मेरे को पता है V इक्वल्स टू आई आर, बस लगा दो फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर। देखो आई एफ पीक यानी कि करंट इन द फॉरवर्ड बायस, मैक्सिमम करंट कितना आया हमारा 37.8 आया, राइट, इनटू आर एल 500, आ गया आंसर 18.9 वोल्ट्स। सो द पीक आउटपुट वोल्टेज इज 18.9 वोल्ट्स। अब यहाँ पे है मेथड 2 विच इज़ क्रूड, थोड़ी बेसिक है, सिंपल भी है। दिस इज द वे आई सॉल्व प्रॉब्लम्स, सिंपली स्पीकिंग। मैक्सिमम वोल्टेज इन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज 20 वोल्ट्स, लोड रेजिस्टेंस इज 500, डायोड का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम्स। तो डायोड कितना वोल्टेज खाने वाला है, मतलब कि वी नॉट जो कि नी वोल्टेज है 0.7 खाएगा। देन 20 में से सीधा 7 निकाल दो, 0.7 निकाल दो, क्योंकि दैट विल बी द पोटेंशियल बैरियर। अब देखो भाई, डायोड को बोलना है कि भाई तू करंट पास कर, तो उसको रिश्वत तो देनी पड़ेगी, यानी कि उसकी कन्वीनियंस फ़ी है 0.7। तो भाई 20 रुपये में से 0.7 तो ख़त्म हो गए, तो बचे कितने 19.3। अब 19.3 जो बचा हुआ है, इसका हम ये सर्किट बना दिए। अब इस 19.3 को इसके साथ कनेक्ट कर दिए, क्योंकि 10 तो डायोड का रेजिस्टेंस है। अब वो वहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, आएगा तो सर्किट में ही। तो 500 प्लस 10 हो गया 510 ओम्स। अब सिंपल ओम्स लॉ लगा दो भाई, V इक्वल्स टू आई आर, वो 19.3 डिवाइडेड बाई 510, ये आ गया आंसर। दिस इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट एंड हेंस द मैक्सिमम करंट थ्रू द डायोड आई एफ। तो ना वो झंझट है, ना ये जो इक्वेशंस है ये सब वी नॉट वगैरह वगैरह, वो झमेला ही नहीं है। बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये वोल्टेज किस में से माइनस करना है, कितना करना है, एंड ऑल दो स्टफ। ये आ गया आंसर। सो दिस इज द आई एफ करंट इन द सर्किट। अब पीक आउटपुट वोल्टेज की बात आती है। देखो ये पीक आउटपुट वोल्टेज जो है, अभी जैसे बताया, ऑलवेज कैलकुलेटेड अक्रॉस द लोड, यानी कि इधर अगर वोल्ट मीटर लगाया तो कितना वोल्टेज आएगा, कहाँ पे, इस लोड के बीच में, दिस इज आर एल।
यहाँ पे अगर तुम मल्टीमीटर लगाओगे तो कितना वोल्टेज आएगा, दैट इज बीइंग आस्क्ड, दैट इज पीक आउटपुट वोल्टेज। अब इसमें से जा रहा हुआ करंट तो मुझे पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, सो V इक्वल्स टू आई आर लगा दिया एंड दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, दिस इज कॉल्ड 18.9 वोल्ट्स। तो अगर आप यहाँ पे वोल्टेज के लिए मेजरमेंट करोगे तो यू विल गेट 18.9 वोल्ट्स, दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। अगर आइडियल लिया तो आंसर क्या आएगा, दैट यू विल हैव टू सेंड इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। अगला जो नेक्स्ट पार्ट है, forward current and all this is going to be covered into lecture number 2, which is going to come soon. So subscribe the channel for updates and thank you.